Okay, exercise 7.3. Exercise 7.3. Yesterday I solved up to the question number 7. So today I'm going to solve question number 8. Question number 8 is Jagdeep traveled 14 km from Karol Bagh to Pusa Road in an auto rickshaw and 5.5 km from Pusa Road to New Delhi railway station by a taxi. Okay. After that, Jagdeep covered 1 by 3 km from the parking of the New Delhi railway station to the platform on foot. What is the total distance covered by Jagdeep from Karol Bagh to reach the platform? It's very simple. He traveled in taxi. He traveled no sorry. He traveled in auto rickshaw. He traveled in taxi. Then he traveled on foot. So we have to add all this. Okay. Jagdeep traveled on auto rickshaw देखो ये ऑटो रिक्शा में कितना ट्रेवल किया 14 किलोमीटर ठीक है देखो अभी तुम लोग क्लास 6 में अच्छे से तुम लोग ये करो मतलब प्रैक्टिस करो जो भी क्वेश्चन आंसर जो कम भी पढ़ाई हो रहा है ना तो उसको 2-3 बार बनाओ ज़रूर नहीं तो 7th पे पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा तुम लोगों के लिए ठीक है ये ध्यान रखना अभी ये मत सोच के पढ़ो कि 6 का पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन हो रहा है तो नहीं पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ना चाहिए मतलब तुम लोग अपना प्रैक्टिस मत छोड़ो माइनस प्लस ये जो भी होता है क्लास में या तुम लोग के चैप्टर में जो भी है या जो भी तुमको आता है उसको छोड़ो मत ठीक है वो फिर छूट जाएगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगा 7 में पढ़ना क्योंकि लॉकडाउन एक दिन ख़त्म होगा ही कोरोना भी ख़त्म होगा ही और क्लास स्टार्ट होगा ही और उस वक्त के लिए अगर तुम लोग तैयार नहीं रहोगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगा क्योंकि अभी क्लास 7 के स्टूडेंट्स को ट्यूशन्स में पढ़ाते हैं तो देखते हैं उन लोगों का क्लास 6 अच्छा से नहीं हुआ था तो अभी उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है तो ये बात ध्यान रख करके पढ़ो ये सोच करके पढ़ो कि हम क्लास 7 के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं always keep it in mind that you are preparing for standard 7 not you are studying just for standard 6 not just for appearing in the exam and marking and getting very good marks but you are preparing for next class also so and 5.5 kilometer from Pusa Road to taxi so Jagdeep traveled on taxi so we can just write here we have to put comma here then on taxi okay then on foot he travels how much he travels 1 by 3 kilometer so how much distance he covers so we have to just do the addition okay we have to add all these numbers so total distance covered how you will write total distance covered equals to 14 plus 5 1 by 2 plus 1 by 3 so fourteen 2 5s are 10 plus 1 11 14 plus 11 by 2 plus 1 by 3 now here denominator is 2 and here denominator is 3 so we have to convert it into the similar fraction so what we will do we will convert all the denominator into 6 because you see 2 and 3 are prime numbers and there's nothing common in them so what we have to do we have to just multiply them 2 into 3 and they will become 6 so that's why here we are assuming that 14 is divided by 1 so we will convert 1 into 6 we will convert 2 into 6 we will convert 3 into 6 and accordingly we have to convert numerators also okay so what we will do just see this step so I will multiply 14 with 6 why because here denominator is 1 I have to multiply 1 with 6 plus 11 I will multiply with 3 why because 2 I have to multiply with 3 okay
then 1 by 3 is there, so I will multiply it with 2, and here also I will multiply with 2. Okay, so in this way all the denominators and will be converted into 6. Okay, 14 6 are how much? 6 4s are 24, 6 1s are 6 plus 2 84. Is it correct? Yes, it's correct. And 6 plus 33 by 6 plus 2 by 6. Now you see all the denominators are equal. So in fractions, always remember, if denominators are not same, we cannot do any arithmetical calculations. We cannot do addition, we cannot do subtraction. So now we can add them very easily. 84 plus 33 plus 2, okay, and then divided by 6. So 84 plus 33, how much? 3 plus 4 7, oh sorry, 8 plus 3 11. Okay, 11 and then 2 119. So 119 by 6, oh sorry, what happened? So it's automatically converting in some shape. So 119 by 6, again it's converting into some shape 6. So you see 1 plus 1 2 plus 9 11. Yes, so this will not be converted into, no, nothing is common. So what we have to do, we have to just divide it. How many times? 6 1s are 6, 4 9 8 48. Yes, so he travels completely 18 1 by 6 kilometer. This is the answer. So I will send the picture, and probably I will send the recording also, so you don't need to copy right now. You can later see it in your WhatsApp group, and you can download the video and you can practice them. Okay, so no need to write them right now. What's happening? Okay, so this is just for rough purpose. Okay, this is the actual solution. You can just copy it, but I will send this video in your group, so no need to write just now. You can just watch the video later. Okay, so next question is question number, at least I will solve 3 questions today. Okay, so Ranjana used 7.5 liter, L is there, see L is there, not kilometer, it's L, liter of refined oil to fry puris. लो रंजना पूरी बनाई थी रिफाइन ऑयल से. अब इसका भी क्वेश्चन है. अगर मैं बोलूँगा ऐसे तो तुम्हारे घर के गार्जियंस बोलेंगे सर इधर उधर का बात करते हैं, हाँ पढ़ाते नहीं. अब देखो क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है, पूरी और रिफाइन ऑयल के बारे में लिखा हुआ है. अब बोलो, इसको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा ना. घर में अगर कोई पूछेगा कि सर रिफाइन ऑयल और पूरी के बारे में क्यों बोल रहे थे, सर हमेशा खिलाने के बारे में बोल रहे थे, बोलते रहते हैं, तो बोलना कि नाई के माए या क्वेश्चन में नहीं, छोड़ो नहीं बोलेंगे. क्वेश्चन में दिया हुआ था. ओके, फॉरगेट इट. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9. Ranjana used 7.5 liter of refined oil to fry puris and 3/4 liter of oil for cooking all other food items. How much oil was left after complete cooking if she had container with 15 liter oil? So 15 liter उसके पास था. So total oil, liter. Oil consumed for puris equals to how much? 7.5 liter. Okay, oil consumed for others, how much? 6 3/4. Total
total oil consumed, total oil consumed 7 1/2। नेहा तुम प्रैक्टिस कर रही हो ना मैथ्स का? हाँ, मैथ्स का प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना, नहीं तो फिर 7 8 में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी जस्ट 6 में हो तुम, याद रखना। तो देखो डिनोमिनेटर को यहीं पर सेम कर देते हैं, नहीं कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। 2 7 14 + 1 15/2। ओके, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। 6 4 24 24 + 3 27 27/4। ओके, अब देखो दोनों को हम लोग 4 में कन्वर्ट कर देते हैं, दोनों डिनोमिनेटर को। तो अगर इसको 4 में कन्वर्ट करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसलिए इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमिनेटर को। सो इसको ऐसे अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो इसको मैं एक और स्टेप लिख देता हूँ इस तरह से। ओके, 27/4। ओके, 30/4 + 27/4। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। चाहे एक स्टेप स्किप कर देते हैं हम लोग क्या करते हैं, एक बार में लिखते हैं ऐसे, ये ज़्यादा अच्छा है। तो ये हो जाएगा 30 कहाँ, 57/4। ये अभी इतना ही हुआ, अभी इसको फिर माइनस करना है। टोटल कितना है, 15 लीटर है। ओके, वेट, टोटल, सो ऑयल लेफ्ट, रिमेनिंग ऑयल 15 लीटर माइनस 57/4। 15 4 60 माइनस 57/4। देखो 4 और 15 को मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों, देखो यहाँ पर मैं तुम लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तुम लोग सोच सकते हो कि सर यहाँ 16 कैसे आया। देखो इसको मैं दूसरे कलर से करता हूँ। ओके, जैसे कि मान लो 15 माइनस 57/4 कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एज्यूम करना है। एज्यूम क्या करना है कि कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई भी रहता है, 1 से डिवाइड भी रहता है। तो यहाँ मान लो 1 है, 1 को 4 में कन्वर्ट करना है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसलिए इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो 15 × 4 60 होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब तुम लोग हायर क्लास में जाओगे तो तुम लोग को ये स्टेप स्किप करना पड़ेगा। एक बार में इसको मल्टीप्लाई कर दो, जितना मल्टीप्लाई होगा मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो। ठीक है, 60। या फिर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं और एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। देखो स्टेप बाय स्टेप, ये क्या होगा, ये तुम लोग का हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 15/1 57/4। ठीक है, अब हो जाएगा 15 × 4 1 × 4 माइनस 57/4। ओके, अब देखो 60, 15 × 4 60 और नीचे 4 माइनस 57/4। ठीक, अब दोनों डिनोमिनेटर एक हो गया, 4 60 माइनस 57। तो यहाँ देखो कितना स्टेप स्किप करते हैं हम लोग, एक स्टेप, गुड मॉर्निंग, 2 स्टेप, 3 स्टेप, ये तीनों स्टेप स्किप कर देते हैं, ये तीनों का ज़रूरत नहीं है। यहाँ से सीधा तुम लोग ये स्टेप लिख सकते हो, ये लिखना पड़ता है। हम लोग क्लास 5 6 से ऐसे लिखते थे। ठीक है, तुम लोग तो इंग्लिश मीडियम में क्या होता है और इजी हो जाता है। ठीक है, आईसीएसई बोर्ड में हार्ड है, सीबीएसई बोर्ड में तुमको बहुत सारा स्टेप स्किप करना पड़ेगा, आईसीएसई बोर्ड में तुमको बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो ये तुमको आदत बनाना पड़ेगा, ये सब स्टेप स्किप करना पड़ेगा तुमको। यहाँ से यहाँ कैसे जंप हुआ ये तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, अभी तुम लोगों का ऑनलाइन क्लास हो रहा है इसलिए बहुत चीज़ एक्सप्लेन करते हैं स्टेप बाय स्टेप, बट इसका तुम लोगों को हैबिट बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये तुम लोग को बार बार करके समझना पड़ेगा कि 15 माइनस 57/4 था, तो वो सीधा 60 माइनस 57/4 कैसे हुआ, तो उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ है। ठीक है, ओके ओके, लेट्स डू इट नाउ। लेट मी चेंज द कलर। सो 60 minus 57, this is 3/4. That means remaining oil is 3/4 liter. Okay, this is the answer. So I am recording this, I will send this in group also, so you don't need to hurry, you can write it later.
I will send the video. Okay. Okay, so next question is, three friends Pawan, Sudhir and Diwan rented a house. Pawan occupied half of the accommodation and Sudhir occupied 1/3 of the accommodation. How much accommodation was left for Diwan? Let's read the question one more time. Three friends Pawan, Sudhir and Diwan rented a house. Pawan occupied half of the accommodation, Sudhir occupied. So what we have to do? We have to first add these two numbers. So Pawan occupied how much? Half space. Then Sudhir occupied 1/3. Okay, now how much space is left? इसको एक बार में एक स्टेप में कर सकते हैं, इजी है, ये टफ नहीं है, बहुत इजी है, बस इसको क्वेश्चन को समझना हार्ड है. ओके, यहाँ सीधा लिखोगे तुम लोग स्पेस लेफ्ट, कितना स्पेस बचा है ये फाइंड करना है. सो स्पेस लेफ्ट इक्वल्स टू 1 माइनस, अब ये दोनों को ऐड कर दो, 1/2 प्लस 1/3, ये दोनों को ऐड करके 1 से माइनस कर दो, यही होगा आंसर तुम लोगों का. ओके, सो अब इसको ऐड करने के लिए क्या करना होगा? 2 और 3 को फिर से डिनोमिनेटर 1 करना पड़ेगा. तो 2 और 3 का डिनोमिनेटर इक्वल होकर के 6 हो जाएगा, क्योंकि देखो 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है. 2 अलग प्राइम नंबर है, 3 अलग प्राइम नंबर है. जब तुमको ऐसा दो नंबर मिलेगा जो जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो तुमको क्या करना होगा? दोनों को मल्टीप्लाई सिर्फ कर देना होगा. और 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 हो जाएगा. 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 2 हो जाएगा. अगर उसका स्टेप भी ब्रेक करके देखोगे तो भी यही होगा. ओके, 1 माइनस 3 प्लस 2 5, 5/6. अब 5/6 को माइनस करना है, तो अभी देखो यहाँ पर कैसे मैंने बताया था, ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया था मैंने. अब तुम लोग को ठीक उसी तरह 6 और 1 को मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा. 6 माइनस 5/6. ओके, नाउ 6 minus 5 will become 1/6. This is the answer. This is the space left. अगर इसको फ्रैक्शन का टेबल से समझना है, सहानिया गाल पे हाथ दे रही है, शायद उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है. चलो देखो, इसको मैं समझाता हूँ कैसे. देखो, चलो इसको हम लोग इमेज बना के समझते हैं. ठीक है, इमेज थोड़ा मेरा टेढ़ा मेढ़ा होगा, समझ लेना. मान लो ये एक रूम है. ठीक, अब देखो इस रूम को बांटने के लिए, इजीली समझने के लिए हम लोग इस रूम को 6 हिस्सा में बांट देते हैं. ठीक है, देखो 1 2, ये 3 हिस्सा हो गया. अगर इसको हाफ कर दे तो, हाँ देखो अब 6 पार्ट्स हो गया. 1 2 3 4 5 6. ठीक है, अब इस रूम को 3 दोस्त शेयर कर रहा है. ठीक, 3 दोस्त का नाम है पवन, सुधीर और दीवान. ठीक, पवन ऑक्यूपाइड हाफ ऑफ द अकोमोडेशन, वो आधा ले लिया. चलो पवन का स्पेस को हम लोग पीला येलो कलर से हम लोग ये करते हैं. दिस इज टेकन बाय पवन, दिस इज टेकन बाय पी 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 पवन. ठीक है, हाफ पवन ले लिया. अब उसके बाद कितना है? सुधीर ऑक्यूपाइड 1/3. अगर इस पूरे को 3 हिस्से में बांटेंगे, 1 2 3. ठीक है, तो इतना सुधीर ले लिया. पवन का हम लोग रिवर्स करते हैं, ऐसे हम लोग बांट नहीं पाएंगे, पहले हम लोग सुधीर का बांटते हैं. अगर पूरे हिस्से को 3 हिस्सा में बांटे तो उसका एक हिस्सा
सुधीर ले लिया, तो दिस इज सुधीर, दिस इज सुधीर, तो 1/3 ये सुधीर ले लिया। 3 हिस्सा पवन ले लिया। अब पवन का हम लोग रेड से करते हैं। ये पवन ले लिया, ये भी पवन ले लिया, ये भी पवन ले लिया। तो देखो 6 हिस्सा में से 3 हिस्सा पवन ले लिया, तो इसका मतलब आधा। 3/6 बोलो या 3 को कट करोगे तो ये 1/2 होगा, मतलब आधा हिस्सा पवन ले लिया। ठीक है, अब देखो बचा कितना वो निकालना था, सिर्फ एक हिस्सा बचा। मतलब यहाँ देखो अब सहानिया एक हिस्सा बचा कि नहीं, 1/6 है ना। मतलब इसको 6 हिस्सा में हम लोगों ने डिवाइड किया था, 6 इक्वल पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड किया था। 6 इक्वल पार्ट्स में से सिर्फ एक पार्ट्स बचा। ये 3 पार्ट्स किसने लिया, पवन ने। ये 2 पार्ट्स किसने लिया, सुधीर ने। ठीक है, सिर्फ एक पार्ट बचा दीवान के लिए, तो यही निकालना था, यही कैलकुलेट करना था कि हाउ मच स्पेस इज लेफ्ट। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के लिए इतना ही होगा। यस, और टाइम भी 5 मिनट बचा है। अब देखो ये क्वेश्चन को फिर से मैं एक बार सब रिवाइज कर देता हूँ, क्या क्या क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। सृष्टि भी बाद में क्लास ज्वाइन की। देखो सर फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने पहले किया था। जगदीप ट्रैवल करता है, रिक्शा से जाता है 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, टैक्सी से 5.5 किलोमीटर और 1/3 फुट पैदल जाता है। तो टोटल वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो तीनों का ऐड करना है। ठीक है, तो देखो 14 के नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, तो किसी भी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर 1 होता है। और 5 2 10 + 1 11/2 हो गया ये, और 1/3। अब 2 और 3 का डिनोमिनेटर 6 होगा, एलसीएम 6 होगा, इसलिए जितना भी यहाँ डिनोमिनेटर है सबको हम लोग 6 में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो 6 में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग को न्यूमिनेटर भी ऊपर कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये 84/6 हो गया, ये 33/6 हो गया, ये 2/6 हो गया। सबको ऐड कर दिए, फिर सिंप्लीफाई किए, तो ये हो गया 18 1/6 किलोमीटर। सिंपल, इतना डिस्टेंस जगदीप ने ट्रैवल किया। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। इसके बाद देखो टोटल ऑयल 15 लीटर था, उसमें से पूड़ी बनाने के लिए 7.5 लीटर खर्चा हुआ, और बाकी सब काम के लिए 6 लीटर, 3/4 लीटर, 3/4 1/4, यस ना 3/4 लीटर यूज हुआ। ठीक है, 6 and 3/4, तो 3/4 को क्वार्टर, 3/4 हम लोग पढ़ सकते हैं, 1/4 को क्वार्टर पढ़ सकते हैं। तो ये इतना लीटर यूज़ हो गया। तो ये बचा कितना, तो ये दोनों को पहले ऐड करना है। ये दोनों को हम लोग ऐड किए, उसके बाद 15 से माइनस कर दिए। ठीक है, सिंपल। इसका वीडियो में मैं भेज दूंगा ग्रुप में। ठीक है, तो ये 3/4 लीटर तेल हमारा बच गया। इसको कैसे कैसे मैंने किया है यहाँ पर एक्सप्लेन किया है मैंने, कुछ स्टेप्स तुम लोग को स्किप करना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक रूम 3 दोस्तों ने मिलकर के रेंट किया, भाड़े में लिया। उसमें से पवन ने कुछ स्पेस लिया, सुधीर ने कुछ स्पेस लिया, तो दीवान के लिए कितना स्पेस रह गया। तो पवन ने हाफ स्पेस ऑक्यूपाई किया, सुधीर ने 1/3 स्पेस ऑक्यूपाई किया। ठीक है, और बच गया 1 में से तुम लोगों को माइनस करना है, क्योंकि पूरा रूम को हम लोग 1 सपोज करेंगे। यहीं पर ये क्वेश्चन इसी जगह पे ट्रिकी है कि टोटल स्पेस कितना है ये दिया हुआ नहीं रहेगा। टोटल स्पेस अगर नहीं दिया हुआ है तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में टोटल स्पेस 1 होता है। क्योंकि मैं तुम लोगों को बार बार समझा रहा था पहले भी एग्जांपल देकर के, एक पिज़्ज़ा, इसको पूरा को 1 समझो हमेशा, दिस इज़ 1 पिज़्ज़ा। इसको फिर अलग अलग पार्ट में बांटते हैं। जब से मैं फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को इसी तरह से समझा रहा हूँ कि 1 पिज़्ज़ा है, 1 2 3 4 5 6, तो 1/6 है। 1/6 को हम लोग फिर 2/12 भी लिख सकते हैं, वो भी सेम है। तो कंफ्यूज मत होना, इसको समझने की कोशिश करना। 6 में हो फिर 7 में, ये सब फिर से तुम लोगों को रिपीट होगा, उसी पर डिपेंड, इसी पर बेस्ड होकर दूसरा क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ये दोनों को ऐड करके हम लोगों ने 1 से माइनस कर दिया, तो स्पेस लेफ्ट हो गया 1/6। दिस इज द आंसर। ओके, यस सर। सब बंदा ढिलो ज्वाइन गरेको छ, यो चाहिँ फर्स्टमा भन्दैछ यस सर। यो जति क्वेश्चन गरेर पठाएँ यो सबै 2-3 पल्ट प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। ओके सृष्टि? यस सर। ओके ओके सर। ओके, नेहा तुम्हारे पास में कौन खड़े थे? पापा?
नेहा नहीं सुन रही है, ओके। सना, 2 दिन से क्लास नहीं ज्वाइन की, तुम प्रैक्टिस करी हो कि नहीं मैथ्स का? यस सर। यस सर। 2-3 बार देखो, मैथ्स डेली प्रैक्टिस करो, नहीं तो आदत छूट जाएगा ना। अभी 7 में जो लड़कियां आती है ऑफलाइन क्लास के लिए भी या फिर ट्यूशन्स के लिए भी जो आती हैं, तो बहुत प्रॉब्लम होता है उन लोगों को। सिंपल माइनस प्लस भी करने में उन लोगों को बहुत टाइम लगता है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करो, मेहनत करते रहो, ठीक है? ठीक है, चलो आज का क्लास ख़त्म करते हैं और इसका वीडियो मैं भेज देता हूँ। बाय एवरीबॉडी, थैंक यू, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग क्लास, थैंक यू बाय, सर। थैंक यू, बाय। थैंक